Hey friends, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. You guys must have read the thumbnail, so you guys already know what this video is going to be about. So, I am a final year medical student at Hyderabad, and this is my first YouTube video. Sorry, I'm a bit shy and I can't show my face, but in this video, I'll be discussing about MDCAT entry test preparation. So, if you are a pre-medical student and aiming for pursuing medical in future, then you are at the right place. So without any further ado, let's get started. I'll cover three things in this video. Number 1, the resources you are going to need. Number 2, the timeline for your study. And number 3, about the center, tuition center, whether you're going to need it or not, or if yes, then which one. सो की ज़रूरत है या नहीं, या आप घर पे भी पढ़ सकते हैं कि नहीं. So coming to the resources, all of you know there are 4 subjects that are being covered in the entry test: English, Chemistry, Physics and Bio. Previously there were 100 MCQs and now about 180 or 200. I'm not sure of it, but about 200. So let's discuss about the resources one by one. For English, guys, before I should tell you what you're going to need for your preparation for English, let me tell you about myself. I didn't use any book for English. Trust me, English that has been asked in the entry test is super easy. That if you're from any English medium school, then you should definitely not waste time over it, because you know already you have got a lot of to cover. So but if you belong from a Sindhi medium or a Urdu medium school, or if you're from an internal sin, then for those people I'll suggest one book. That would be SAT English book. It is very descriptive and very informative. It will cover all your grammar, comprehensions, tenses and everything that has been asked in your entry test. Now chemistry. For chemistry, the resources will be Syntax book, Punjab textbook, Kaplan series chemistry book, and Dogger's Vital Caravan. Also, there are also resources, but I'll discuss it in the end. These were the major ones that you will need definitely. खरीदने ही खरीदने हैं भाई, पक्का पक्का खरीदने हैं. So about syntax book, it is very important. It's the major and common resource for all the subjects. Each and every line you need to understand and remember and thoroughly go through it 6 to 7 times. Only that's how you would remember it till the last date. क्योंकि 4 months होते हैं. If you are studying from your starting month, and then definitely you would forget some of the points till your last day. So I'll say सिंटैक्स बुक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड सिंटैक्स बुक को आपको टिल एंड तक इसके टेक्स्ट की रिवीजन करती रहनी चाहिए. अबाउट पंजाब टेक्स्ट बुक, वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस, बिकॉज it has become very important from now on. Previously there were no questions related to it, but now they have given importance to it too. Also इसमें आपको पूरी कवर नहीं करनी है. You do not need to cover the text, you do not need to go through the text. only and only exercises जो कि text के बीच में होते हैं, exercises 1 2 जो problem solved होती हैं, only you need to go through them. कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि पूरी टेक्स्ट बुक सिंध भी पढ़नी है, पंजाब भी पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस कवर करनी है जो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं बिटवीन दी टेक्स्ट, वो भी पूरी बुक की. अनदर रिसोर्स फॉर द केमिस्ट्री इज़ कैप्लन, विच आई मैंशन. कैप्लन की और भी बुक्स हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, बट ओनली यू हैव टू बाय केमिस्ट्री वर्जन, बिकॉज इसमें जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं प्रॉब्लम्स की, दे आर वेरी हेल्पफुल, और इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो चीप, एंड देर आर ऑल्सो लिटिल बॉक्सेज ऑन द साइड ऑफ द पेजेस that contain new formulas that will be helpful for you guys. And also it is somewhat related to the Punjab series, so अगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा. Do solve all of its problems once before you appear. And also other are Dogger's Caravan, Vital. Why I'm suggesting these, because chemistry and physics में you will only get most of the MCQs are problems.
जो टेक्स्ट होता है वो केमिस्ट्री में होता है, लेकिन फिज़िक्स में इतने ज़्यादा टेक्स्ट पोर्शन से एमसीक्यूज़ नहीं होते हैं. दे प्रोवाइडेड प्रीटी गुड नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ फॉर प्रैक्टिस डॉगर, कार्बन और वाइटल में. Why I'm suggesting Dogger, Carbon and Vital, the reason is that they have provided a pretty good number of the MCQs for practice purpose, and also you guys all know that physics and chemistry mostly involves problems rather than from the text. जो MCQs होते हैं वो उसमें mostly problems होती हैं, so it will build your reflexes over the problems, and also ऐसा नहीं होगा कि आपको एंड में प्रैक्टिस हो ही ना. तो इसीलिए जितने ज़्यादा यू विल सॉल्व द MCQs उतनी ज़्यादा योर प्रैक्टिस विल बी वेल एंड गुड. नाउ कमिंग टू द फिज़िक्स, इट इज़ वेरी वेरी टफ, एंड ऑल्सो इट ओनली इन्वॉल्व्स द MCQs जो कि प्रॉब्लम से होते हैं, ज़्यादातर टेक्स्ट वर्जन से नहीं होते हैं. सो आपको इसकी जो प्रैक्टिस है यू डेफिनेटली नीड टू कंटिन्यू इट टिल द एंड. ऑल द 4 months आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए. आपको इसकी प्रैक्टिस रुकनी नहीं है बीच में. So resources for physics is syntax book, Punjab text series, both are common for all the subjects as I told you. Also इसके अलावा doggers and dogger is very very important. नोट बना लें, डॉगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स. और उसके अलावा वाइटल एंड कारावन. जो डॉगर है, वाई एम एम्फेसाइजिंग मोर ओवर डॉगर इज़ दैट इसके जो बेसिक हैं दे आर बिट ऑफ ट्रिकी, एंड ऑल्सो देयर आर सम न्यू फार्मूलाज दैट आर अप्लाइड टू देयर problems. So you should definitely check it out, and also they have provided key in all the books. They are provided key and also explanation. So ऐसा नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल आए ही ना. बट वन थिंग आई वुड से, जो डॉगर्स के प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रिकी होते हैं, वो हार्ड होते हैं. सो अगर आपकी हार्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की भी होगी तो ईजी हो जाएगा आपके लिए टेस्ट में. From Dogger, try to solve all the problems from the physics portion. It will save you and get you from this monster test, and that's why I am focusing more and more over Dogger. जहनों में बिठा लें कि डॉगर आपको पूरी सॉल्व करनी है फिज़िक्स पोर्शन. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व, बट वंस यू कवर इट इट विल डेफिनेटली सेव यू. कार्बन वाइटल इसीलिए, जैसे सेम रीज़न है केमिस्ट्री में, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बेसिकली सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. नाउ बायोलॉजी के लिए सिंटैक्स बुक, कार्बन, वाइटल एंड डॉगर. बायोलॉजी has got a lot of repetition type of the stuff, so more you will practice, more will you retain. जितने ज़्यादा बेसिकली सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटेन होता जाएगा टॉपिक, और टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. सो एंड ऑल्सो इफ़ यू डू नॉट हैव मोर टाइम and if you do not have more resources, then at least go through the syntax book 6 to 7 times at least, ताकि आपके जो BCQs हैं वो कवर हो जाएंगे. Now there are certain other resources which I did not mention in the previous, and now I'm mentioning it because ये जो सोर्सेज हैं ये बहुत ही लिमिटेड शॉप्स पे मिलती हैं आपको, बहुत ही लिमिटेड सिटीज़ में मिलती हैं. देन आपको उसके लिए खुद से ही आपको अरेंज करनी पड़ेंगी. एंड दीज आर, नंबर 1, रेड स्पॉट सीरीज़. पहले बहुत कम मिलती थी पर अब शायद मुझे लगता है मार्केट्स में अवेलेबल है. रेड स्पॉट की आपको ऑल दी सब्जेक्ट्स की O and A लेवल्स की बुक्स आपको मंगवानी है, और इसमें जो ऑलरेडी सॉल्व BCQs हैं जस्ट गो थ्रू दैम. जो एक्सरसाइजेज हैं पीछे उनको टच करने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 2, उमरकोट में एक सेंटर है SPSC, सिंध पब्लिक समथिंग लाइक दैट, मुझे नेम रिमेंबर नहीं है, लेकिन इनके जो नोट्स होते हैं उनके BCQs इतने टफ होते हैं. अगर इफ़ यू गो थ्रू ऑल ऑफ द BCQs ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स देन डेफिनेटली इट विल सेव यू, बिकॉज जो इतने ट्रिकी होते हैं और आपके इतनी अच्छे रिफ्लेक्सेस बिल्ड हो जाते हैं और इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको एंड में मसला ही नहीं होता है. ऐसा लगता है जैसे आपको एक यूजुअल नॉर्मल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी. कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेशन जो कि है टाइमलाइन, कि आपको अपना टाइम स्केड्यूल कैसे सेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद अबाउट माइन कि मैंने कैसे किया था. तो आफ्टर माई इंटर एग्ज़ाम्स आई हैड 4 months टिल माई टेस्ट. सो सबसे पहले व्हाट आई डिड, फर्स्ट मंथ में मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर का कोर्स कवर किया था. फर्स्ट ईयर का कोर्स थ्रू आउट मतलब सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए थे. मेरा ये प्लान था कि मतलब मैं हर दिन में तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर के
टेक्स्ट है उसको रीड करती थी, अंडरस्टैंड करती थी। फिर उसमें बाद जितना भी मुझे टाइम बचता था उसमें मैं बुक्स जितनी भी मेरे पास अवेलेबल चीज़ें थी, अवेलेबल मटेरियल जितना भी था वो मैं मतलब जहाँ से भी मैंने अरेंज किया था और जितना भी मेरे पास इकट्ठा हो गया था मैं सबके BCQ सॉल्व करती थी और फिर मुझसे जितने हो सकें। और मैं कितना टाइम एक दिन में पढ़ती थी, कितने आवर्स लेती थी, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने अबाउट 10 आवर्स में पढ़ती थी स्टार्टिंग के डेज़ में। लेकिन जैसे जैसे मूविंग फॉरवर्ड मैंने जो मेरे आवर्स हैं वो बढ़ते चले गए। कभी मैंने पहले 14 किए, फिर मैंने अबाउट 18 किए। समटाइम्स ऐसे होता था कि जैसे मैं 4 घंटे सो रही हूँ और 20 घंटे पढ़ रही हूँ, ऐसे भी हो जाता था। तो ये एक पॉइंट आप समझ लें कि जो एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक जो चैप्टर है उसको कवर करना है और उसके जितने हो सकें BCQs करने हैं। इंग्लिश क्यों नहीं काउंट करी, क्योंकि इंग्लिश में इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, इतना मुश्किल BCQs आते ही नहीं है। जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल ग्रामर बिल्कुल सिंपल होती है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने पहले सेट्स की बुक आपको सजेस्ट किया, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको अपना दूसरे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, टाइम बचाना है, तो आप इंग्लिश पे इतना ध्यान ना दें। तो इतना है कि आपके अगर आप बिल्कुल भी ना पढ़ें तो आपके 8 आउट ऑफ 10 BCQs तो हो ही जाएंगे। मेरे तो 10 के 10 सही हो गए थे बगैर पढ़े, तो आई गॉट लकी। और दूसरा ये, सबसे पहले वाले मंथ में आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट करना है, इंटर को टच नहीं करना है, क्योंकि आप रिसेंटली इंटर के एग्ज़ाम्स दिए हुए होते हैं आपके। तो मुझे नहीं लगता आपको उस वक्त फ़ौरन इंटर की पढ़ने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो फर्स्ट मंथ में व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपना फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ना है, कैसे भी करके आपको एटलीस्ट 85% कोर्स कंप्लीट करना है फर्स्ट मंथ में। देन अगर आप सेंटर पे जा रहे हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि आपकी जो आवर्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप सुबह सुबह जल्दी उठते होंगे, फिर वापसी आके आपको और भी दूसरे काम, खाना पीना, नहाना और सोना भी होता है, तो आपके आवर्स कम हो जाते हैं। मैंने सिर्फ 1 मंथ सेंटर लिया था। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट सेंटर लेते ही नहीं है आजकल, सब घर पे ही पढ़ते हैं, तो इतना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। मैं तो यही कहूँगी आपको सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी अभी कोविड है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही पढ़ें आराम से। जितने ज़्यादा BCQs उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे कि सिलेक्शन के। तो यही ट्रिक है। नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, आपको अपने फर्स्ट ईयर में जो आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस जो अपनी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की थी वो कंटिन्यू रखनी है, बाकी चीज़ें स्टॉप कर देनी है। और जो आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स रह गया था उसको कंटिन्यू करना है और उसके साथ आपको इंटर स्टार्ट कर देनी है। फिर आप इंटर कवर करने में जितना भी टाइम लगाएं, 1.5 मंथ लगाएं या 1 मंथ लगाएं, वो कवर हो जाए। उसके बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1.5 मंथ रह जाता है, उसमें आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। और ये जो मैंने पहले बताया, ये सिंटैक्स बुक आपको पढ़नी है, लेकिन जो टेक्स्ट में, लेकिन जो BCQs हैं वो सारी बुक से कवर करनी है आपको। तो मैंने ऐसे ही लेके चली थी। फिर मैंने अपने लास्ट वीक में मैंने सिंटैक्स बुक को वापस से टच कर लिया था, क्योंकि बीच में फिर मैंने रेड स्पॉट और पंजाब सीरीज़ उन पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मैंने 2016 में टेस्ट दिया था और 2015 में मोस्ट ऑफ द BCQs वर फ्रॉम पंजाब सेक्शन एंड ऑल्सो फ्रॉम द फेडरल। सो आई चोज टू ऑप्ट मोर ऑफ द BCQs फ्रॉम पंजाब साइड, सो मैंने उसका ही कोर्स ज़्यादा पढ़ा था दैन अपना सिंटैक्स। लेकिन मैंने लास्ट वीक में फिर से एक बार मैंने अपने लास्ट वीक में सारे सब्जेक्ट्स की सिंटैक्स की रीड दे दी थी, एक मतलब रिवीजन के लिए। कमिंग टू द थर्ड थिंग जो कि है सेंटर, इसकी आपको नीड पड़ेगी कि नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो सेंटर है मैंने भी सिर्फ फर्स्ट मंथ में ज्वाइन किया था, वो भी इसीलिए क्योंकि आप रिसेंटली इंटर दे के आते हैं, आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स रिवाइज नहीं होता है, तो उसके लिए आप बस 1 मंथ के लिए सेंटर ज्वाइन करें फर्स्ट ईयर का कोर्स रिवाइज करने के लिए। उसके बाद आप बीच में सेंटर छोड़ दें। यही चीज़ मैंने की थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था, इससे कि आपका जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो पूरा रिवाइज हो जाता है। उसके बाद आप सेंटर छोड़ दें, आपके जो लर्निंग आवर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और फिर आप जो मैंने आपको टाइम स्केड्यूल बताया उसी पेस से आप फॉरवर्ड मूव करते जाएं। तो थैंक यू, आजकल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो शेयर दिस लिंक ऑफ द वीडियो टू देयर व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं भी जहाँ पे बच्चों को नीड हो। सो थैंक यू।